In this video, we are going to talk about structuralism, the literary theory given by Ferdinand de Saussure. And in this theory, we will try to find out what is structuralism. This is the theory that was given by Ferdinand de Saussure, who was a very famous linguist, and is also called as father of modern linguistics. So, what is structuralism? It's a school of thought that focuses on elements of structure and attempts to show how they relate to the whole structure. It studies the element, individual fundamental element, which in literature is called as word, and also tries to find out what's the relation of the word with the whole sentence, whole structure. Historical background. Ferdinand de Saussure's his book that actually summarization of his essay at the University of Geneva, the journal Linguistics, in which he told his basic principles about language. And he tries to understand the abstract structure behind all the forms of the social communication, because he believes that if we find out what's the actual system that governs the whole social communication, we will be able to find out the meaning of individual utterances as well. Now we are going to discuss the main tenets or the main features of it. The first feature is that they focused on the form or the system of the language. Means form, as we have discussed earlier, form refers to the structure, but here we in structuralist context we are referring it to the system of the language. So the system that's very important for structuralist here refers to the system of rules or the grammar that governs the whole language. So this is the main focus of structuralist. The second point is that they attempted to make the study of the language scientific, as they aim to analyze fundamental unit of the language. So what's their focus? They analyze the word, and then they try to find out the role of this word in the whole system or in the whole text. But the way they analyze the word, this study make it quite scientific. That's why we can say that this is scientific study. As you know, as in science we study, if we are studying biology or chemistry, which we will start this study from the very basic fundamental unit like atom or cell. So this is how the structuralists focus on the word, which is the very fundamental unit of language. Feature number 3, language has system or the structure in which smaller unit align systematically to form larger one. Structuralists believe there is an arrangement, and that's why they believed that we must focus on morphology, which is the study of the word, as well as we should focus on syntax, which is the study of or the grammar of sentence, because they believe that structures, there is a proper structure that in the word arrangement in a particular sentence. Feature number 4, Ferdinand de Saussure rejected the mimetic theory. What is mimetic theory? Mimetic theory, and he asserted that language is determined by the internal structure. What is mimetic theory? Mimetic theory basically refers to the idea that in the whole words in text or in literature refer to the external things. मीन्स जितनी भी चीज़ें, जो भी वर्ड्स हैं, वो एक्चुअली सिंबल्स हैं आउटसाइड वर्ड के. सो जिस तरह प्लेटो का कंसेप्ट था, जिसमें वो कहते थे कि ये वर्ड जो है वो एक्चुअली रेप्लिका है हेवन अबव का. मीन्स वो ओरिजिनल वर्ड है, और ये दुनिया जो है, ये जितने भी आर्ट है, वो एक्चुअली एक एफर्ट है टू मिमिक दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट. सो ये भी मिमेटिक थ्योरी
ऑफ जिसको हम मिमेटिक थ्योरी कहते हैं, और पहले यही चलती आ रही थी। और लेकिन ये फर्डिनेंड डी सोशर जो हैं ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसको डिनाई किया, एंड ही असर्टेड दैट कि जो लैंग्वेज है वो उसका एक अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर और रूल है, ना कि वो एक ही सिस्टम और एक ही तरीके पर अमल उस पर किया जा सकता है या उसको देखा जा सकता है। क्योंकि फर्डिनेंड डी सोशर ने जो थ्योरी ऑफ साइन दी थी उसमें भी कहा था कि साइन जो है जो कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का पर मुश्तमिल एक एंटिटी है, वो भी एक आर्बिट्रेरी रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कह देना कि सारे वर्ड सिंबल हैं एक्सटर्नल वर्ड का, इट्स रॉन्ग, और दैट्स वाई ही रिजेक्टेड द मिमेटिक थ्योरी ऑफ आर्ट, जो कि बहुत पहले दौर से चलती आ रही थी। सो व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ साइन? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी ऑफ साइन। एक्चुअली फर्डिनेंड डी सोशर बिलीव दैट वर्ड जो है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में लिंग्विस्टिक यूनिट भी कह सकते हैं, वो एक डबल एंटिटी है। एक पेज है जिसकी एक पेज की दो साइड्स हैं, जो कि एक तरफ सिग्निफायर है और दूसरी तरफ सिग्निफाइड है, दोनों जुड़े हुए हैं बट उनका जो रिलेशन है आपस में वो आर्बिट्रेरी है। सो वर्ड जो है वो एक डबल एंटिटी है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक वर्ड या साउंड है जिसको हम सिग्निफायर कहते हैं, और दूसरा जो है वो कंसेप्ट है जो कि वो अल्फाज या वो वर्ड देखकर हमारे जहन में बनता है। सो अगर ट्री का लफ्ज़ लिखा हुआ है और हमारे जहन में एक एक्चुअल ट्री बन जाता है, सो लफ्ज़ लिखा हुआ ट्री जो है वो सिग्निफायर है, जो कि एक ओरिजिनल ट्री मीन्स जो एक एक्चुअल का ट्री है जो हमारे माइंड में बन रहा है, जिसका इमेज उसको रेफ़र कर रहा है, तो वो होगा सिग्निफाइड। सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो ये रिलेशन है वो एक्चुअली मिलकर एक साइन बनाता है, एक वर्ड बनाता है, जो कि सोशर के अकॉर्डिंग एक डबल एंटिटी है जिसमें दो ये कंपोनेंट होते हैं। सो अगर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल देखें, सिग्निफायर जिसको अभी हमने कहा कि ये साउंड हो सकती है, ये रिटन मार्क हो सकता है, और इसी तरह सिग्निफायर जो है कंसेप्ट है या मीनिंग है। सो अगर हम स्टार को अगर डिस्कस कर लें, स्टार तो ये रेफ़र करेगा एक्चुअल स्टार को। स्टार जो लिखा हुआ स्टार होगा उसको हम सिग्निफायर कहेंगे, क्योंकि ये एक कंसेप्ट को रेफ़र कर रहा है जो कि एक्चुअली इस कंसेप्ट है एक्चुअल स्टार का, विच इज़ सिग्निफाइड, जो कि हमारे माइंड में स्टार वर्ड को पढ़कर हमारे जहन में आता है। अगर हम ये देखें कि साइंस जो हैं वो लॉजिकल हैं या आर्बिट्रेरी हैं, तो वो विल से कि साइन जो है वो आर्बिट्रेरी हैं, इस सेंस में कि द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर और सिग्निफाइड, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशन भी आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी क्या होता है? आर्बिट्रेरी मीन्स टू से इलॉजिकल है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई वो मीनिंग नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी हम उसको कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्वेंशनल है, क्योंकि वो एक सोशल प्रैक्टिस के ऊपर बेस कर रहा है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। अगर हम वही पिछली वाली बात स्टार की मिसाल ले लें, तो हम इसमें कोई भी ऐसी लफ्ज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस चीज़ को रेफ़र करे कि एक की वो शक्ल है जिसके 5 कोने होते हैं और ये गोल्डन या चमकने वाले शाइनिंग कलर में होता है। तो ये स्टार जो है, ये लफ्ज़ जो है वो एक सोशल प्रैक्टिस के ऊपर बेस करता है, जो जिससे हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिकली एक आइडिया बन जाता है। लेकिन अगर हम इसका स्टार के वर्ड को अगर देखें इस एक्चुअल स्टार के साथ, तो इसका कोई लिंक नहीं बन रहा। अगर इसी तरह हार्ट की बात कर लें, तो इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें बताए कि इस शेप को रेफ़र कर रहा है, जो कि रेड हॉट कलर की है, और इस तरह से हमें जो मीनिंग इसके मिलते हैं, हम कह सकते हैं कि ये इलॉजिकल है, इसका कोई लिंक नहीं बन रहा। दिस इज़ व्हाट फर्डिनेंड डी सोशर बिलीव अबाउट सिग्निफायर और सिग्निफाइड, के इन दोनों का रिलेशन जो है वो आर्बिट्रेरी है और कन्वेंशनल है। फीचर नंबर 7, ही प्रेफर्ड आवर लैंग ओवर पैरोल। अब हम देखने जा रहे हैं कि लैंग क्या है और पैरोल क्या है, और लैंग को क्यों पैरोल के ऊपर फोकस किया गया है।
नंबर 1 पैरोल। पैरोल हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इंडिविजुअल अटरेंस, या जो इंडिविजुअल जो है वो साउंड प्रोनाउंस करता है या जो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, वो जो है वो उसको हम पैरोल कहेंगे। ऑन द अदर हैंड लैंग जो है वो ओवरऑल सिस्टम को रेफ़र कर रहा है, जो कि इस इन अटरेंसेस को अंडरस्टैंडेबल बनाने की कोशिश करता है हमारे लिए। सो लैंग जो है पूरा सिस्टम ऑफ ग्रामर को रेफ़र कर रहा है, जो कि लैंग्वेज को, जो कि एक्चुअली लैंग्वेज की ग्रामर के स्ट्रक्चर को रेफ़र कर रहा है, जो कि अटरेंसेस को भी, जो कि हम सोशल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, उसको अंडरस्टैंड बनाने के हमें हेल्प आउट करता है। सो फीचर नंबर 8 इज़ Ferdinand de Saussure introduced the synchronic approach towards language study। पहले क्या था, पहले डायक्रॉनिक अप्रोच थी जिसमें हिस्ट्री को फोकस किया जाता था, लेकिन फर्डिनेंड de Saussure ने कहा कि अगर हम लैंग्वेज को ना सिर्फ हिस्टोरिकल एक वर्ड की स्टडी कर सकते हैं या सेंटेंसेस की हिस्टोरिकल उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, बल्कि हम पैरेलली उसकी सिंक्रोनिक स्टडी भी कर सकते हैं। मींस एक ही वक्त में रहते हुए दो मुख्तलिफ पॉइंट्स से उसको स्टडी करना, उस एंगल से देखना, दिस इज़ कॉल्ड सिंक्रोनिक। इसके मज़ीद हम देखते हैं कि सिंक्रोनिक का वर्ड जो है वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। सिंक्रोनिक का मतलब होता है टुगेदर या सेम, मींस एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम में दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को लेकर उनकी स्टडी करना, ये जो है सिंक्रोनिक स्टडी कहता है। और क्रोनिक का मतलब होता है टाइम, मींस वो स्टडी जो कि हम दो मुख्तलिफ पॉइंट्स एक ही टाइम में कर रहे होते हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी इंडिया और पाकिस्तान में किस अंदाज में बोलते हैं, या उर्दू का कंपैरिजन करते हैं, उर्दू उनकी किस तरह की है, तो ये वाला कंपैरिजन हम कहेंगे ये सिंक्रोनिक कंपैरिजन है, क्योंकि ये एक ही टाइम में आजकल के दौर में हम कर रहे हैं। और हमने टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया है कि मॉडर्न टाइम में। सो दिस इज़ व्हाट सिंक्रोनिक इज़ ऑल अबाउट। और ये पॉइंट जो है वो सॉशर ने दिया था इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि लैंग्वेज को हम एक पॉइंट पर एक ही टाइम में दो मुख्तलिफ पॉइंट से देख सकते हैं। इससे हमें मज़ीद लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो पास्ट की स्टडी थी वो डायाक्रॉनिक थी। पहले जो अप्रोचेस एग्जिस्ट कर रही थी, डायाक्रॉनिक का मतलब होता है अक्रॉस या अमंग, और क्रॉनिक का मतलब जो है वी हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट रेफर्स टू अ टाइम। सो डायाक्रॉनिक हिस्टोरिकल स्टडी होती थी जिसमें एक वर्ड का हिस्ट्री या उसके ओरिजिन पर फोकस किया जाता था और देखा जाता था कि पास्ट में इसका क्या यूजेज है एंड व्हाट्स इट्स यूजेज इन द मॉडर्न टाइम। लाइक फेयर का वर्ड, अगर हम फेयर का वर्ड का देख लें, इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें पास्ट में इनका यूजेज और तरह का होता था, लेकिन अब जो है वो इसका मीनिंग और तरह का हो गया है। मीन्स अगर हम फेयर की एग्जांपल है तो नाउअडेज लवली के मीनिंग में आता है, जो कि आम तौर पर ये जो फेयर एंड लवली का भी जो एक ब्रांड बना हुआ है। और इसके अलावा पास्ट में इसका जो यूजेज था वो सिंपल साफ के मीनिंग में आता था। फीचर नंबर 9, स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव्ड लिटरेचर सेल्फ इनक्लोज सिस्टम ऑफ द रूल्स और क्लोज एंडेड थेरी। मीन्स इसमें हम ये ऑब्जेक्टिव थेरी, इसमें हम अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, और जो इंडिविजुअल अटरेंसेस हैं वो भी उनके लिए अहम नहीं हैं, क्योंकि जो कि दे बिलीव्ड कि लिटरेचर जो है एक सेल्फ इंक्लोज सिस्टम है रूल्स का, और इन रूल्स की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस है। इवन दे डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल टेक्स्ट, इंडिविजुअल राइटर और इंडिविजुअल उसके टेक्स्ट की उनके पास कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे बिलीव्ड कि अगर हम इस टेक्स्ट को समझना चाह रहे हैं तो हमें उस ओवरऑल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जो कि इन सारे टेक्स्ट को, सारी कम्युनिकेशन को होल्ड कर रहा है या गवर्न कर रहा है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें ओवरऑल एक जर्नल, एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी। सो the understanding of system is more important than individual utterances for Ferdinand de Saussure। अगर हम सारी डिस्कशन को समराइज़ करना चाहें तो हमने पहले भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फॉर्म और कंटेंट। अगर हम फॉर्म की बात करें इसमें स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में, तो फॉर्म जो है वो फॉर्मल फीचर्स को रेफ़र कर रहा है। पहले हमने डिस्कस किया था कि फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर को रेफ़र कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फर्डिनेंड de Saussure की थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि सिस्टम को रेफ़र कर रहा है और सिस्टम की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर रहा है, ना कि
इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के या ना ही इंडिविजुअल टेक्स्ट के। और कंटेंट जो है वो वही चीज़ जो मीनिंग में आती है, जो कि रॉ मटेरियल है, जिसमें स्टोरी, बायोग्राफिकल एलिमेंट्स और पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस एलिमेंट, जो कि इन लोगों के लिए भी ज़्यादा अहमियत का वो नहीं है। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट theory, and I think you people got the idea. Thank you.